Dear students and friends, good morning to all of you. Myself, Mr. Harkesh from Vivekanand Senior Secondary School, Dharwad. Today we starts chapter 14, Statics. What do you mean by statics? It is a branch of mathematics, or I can say it is a branch of science in which we collect the data, arrange them, analyze them, and then we use these. In statics, there are three main central tendencies. First one is mean, second one is mode, and third one is median. In this exercise, we have four exercises. In first exercise, we calculate the mean. That is, in 14.1, we calculate the mean by three different methods. First one is direct method. Second is assumed mean method, and third is step deviation method. In 14.2, we calculate the mode, and in 14.3, we calculate the median. In the last exercise, 14.4, we calculate the median by graphical method. Once again here, there are three central tendencies: mean, mode and median. To calculate the mean, we have three different formulas. First one is direct method, second one is assumed mean method, and third one is step deviation method. In 14.2, we calculate the mode. In 14.3, we calculate the median by using formula, and in 14.4, we also calculate median by graphical method. Today, we start mean by direct method. Today we discuss about the direct method. Now I start direct method. To calculate mean by direct method, mean x bar equal to summation f5 xi upon summation f5. This is the formula to calculate the mean by direct method, where xi is the class mark, or I can say xi is the mid value, fi is the frequency, and summation fi is the sum of all frequencies. Now we start question first of exercise 14.1. Exercise 14.1, question first. In this exercise, in all questions, you have to calculate the median. Firstly, we discuss about the direct method to calculate the mean. You have to give number of plants जिसे हम स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ हाउसेज, जो हमारे क्या होंगे फ्रीक्वेंसी, जो क्लास इंटरवल गिवन होंगे उसके बेस पर हम यहां क्लास मार्क, जिसे हम मिड वैल्यू भी कह सकते हैं, एक्सआई फाइंड आउट कर लेंगे. क्लास इंटरवल, और आई कैन से नंबर ऑफ प्लांट्स हमें गिवन है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है 1, 2, 1, 5, 6,
2 3। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मिड वैल्यू क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। कैसे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 0 + 2 बाई 2, 2 + 0 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 4 + 2 6, 6 को 2 से डिवाइड 3, 6 + 4 10, 10 को 2 से डिवाइड 5, 6 + 8 14 का हाफ 7, 8 + 10 18 का हाफ 9, 12 + 10 22 का हाफ 11, 14 + 12 26 का हाफ 13। तो अब क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। जिस भी क्लास इंटरवल की हमें एक्साई फाइंड आउट करना है उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। फॉर एग्जांपल 12 और 14 का एक्साई फाइंड आउट करना है तो 12 + 14 बाई 2 दैट इज 13। नाउ वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ fi xi। तो fi into xi, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। मीन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीन बाय डायरेक्ट मेथड मीन इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। यहां हमें स्टूडेंट्स fi xi का प्रोडक्ट हम कर चुके हैं। समेशन मींस fi xi का हमें क्या चाहिए सम चाहिए। तो fi xi का हम यहां सम कर लेंगे स्टूडेंट्स। 9 + 2 11, 15 20 25 31 32, कैरी 3 3 3 6 2 8 प्लस 5 13 और 3 16। ये हमारा किसके इक्वल होगा समेशन fi xi। तो समेशन fi xi इज इक्वल टू 162। यहां पुट करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का क्या चाहिए सम। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 1 + 2 3 4 9 15 17 और 3 20। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन fi 20। Now we put these values of summation fi xi and summation fi in the given formula and we calculate the answer, or I can say we calculate the mean. Summation fi xi की जो वैल्यू है 162, समेशन fi की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 20। 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 10 जा। यदि हम 81 को 10 से डिवाइड करें तो व्हाट इज द आंसर 8.1। तो स्टूडेंट्स यहां आपने फर्स्ट क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट किया बाय डायरेक्ट मेथड। आज हम 14.1 में मीन कैलकुलेट करने के लिए केवल डायरेक्ट मेथड पर ही और आगे क्वेश्चन करेंगे। आफ्टर दैट I start question second, and in this question also I use direct method to calculate the mean, because if we do question again and again by direct method then you have to complete this exercise all questions by direct method. Now I start question second. In question second आपको गिवन है डेली वेजेज इन रुपीज, जिसे हम स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल कह सकते हैं। ये हमारा कॉलम जैसा बताया था एक्साई फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ वर्कर्स। सभी क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन है स्टूडेंट्स। 14.1 एक्सरसाइज में आपको यहां एक्साई मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दिस क्वेश्चन डेली वेजेज 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600।
मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करके यदि हम हाफ करेंगे तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स 510। इसी तरीके से 520 प्लस 540 बाई 2 करेंगे तो 530, 550, 570, 590, ये आपकी मिड वैल्यूज आ जाएगी। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स में 12, 14, 8, 6, 10। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा Fi इंटू XI, Fi XI की मल्टीप्लाई। तो हम Fi XI की मल्टीप्लाई करते हैं, 12 0 0, 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 5 जा 60 और 1 61। 14 से 530 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 0 0, 14 3 जा 42, कैरी 4, 14 5 जा 70 और 4 74, 8 0 0, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, 6 0 0, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34। यदि हम 590 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5900। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता है हमें क्या चाहिए, समेशन Fi चाहिएगा और समेशन Fi Xi मीन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड सम ऑफ Fi इंटू Xi। इनको हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, सभी के पीछे 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, 13 प्लस 9 22, कैरी 2, 2 प्लस 5 7, 10 14 प्लस 7 21 प्लस 6 27। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 12 प्लस 14 26, 34 40 50। अब हमें मीन कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स समेशन Fi Xi की वैल्यू को समेशन Fi की वैल्यू से आप डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो मीन इक्वल टू फॉर्मूला है समेशन Fi Xi अपॉन समेशन Fi। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन Fi Xi? 27260। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन Fi? 50। 0 से स्टूडेंट 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब आप 2726 को किससे डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स? 5 से डिवाइड कर दें। यदि आप इसे 5 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स तो आपका जो आंसर आ जाएगा 545.2। वंस अगेन आई रिपीट, यदि आपको स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो आप क्लास इंटरवल से Xi फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल 500 to 520, Xi कैसे फाइंड आउट होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। 520 to 540 के सामने 530 कैसे आया स्टूडेंट्स? लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड किया और 2 से डिवाइड 530। सिमिलरली वी फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ Xi। फ्रीक्वेंसीज गिवन Fi into Xi मींस Fi Xi का हमने प्रोडक्ट किया और समेशन Fi Xi का मीनिंग है इन सब Fi Xi की जो वैल्यूज आएगी इन सब का सम किया। तो मीन को जो डिनोट हम करते हैं x बार से, कैसे कैलकुलेट किया? समेशन Fi Xi अपॉन समेशन Fi। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आया? 545.2। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, students, we have to find the missing frequency f if mean pocket allowance is rupees 18. Mean pocket allowance is rupees 18. तो mean pocket allowance x बार जो given है वो 18 है students, ये आपको given है। You have to find the missing frequency f in this question and class interval and frequencies are given. Class interval से आप students क्या find out करेंगे? मिड वैल्यू Xi और फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी Fi। क्लास इंटरवल आपको गिवन है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23,
23 to 25। यहां से आप xi फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। 11 प्लस 13 24 का हाफ 12। इसी तरीके से आप कंटिन्यू xi फाइंड आउट कर लीजिए। 13 प्लस 15 28 का हाफ 14। नेक्स्ट 16 18 20 22 24। इस तरीके से आपकी मिड वैल्यूज xi फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे 24 आया स्टूडेंट्स? 23 प्लस 25 48/2 इक्वल टू 24। Frequencies are 7, 6, 9, 13, F. We have to calculate this unknown frequency F 5, 4. Students यहाँ हमें मीन गिवन है तो हमें अननोन फ्रीक्वेंसी F फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें सारी फ्रीक्वेंसीज गिवन थी तो हमने मीन कैलकुलेट किया था। अब हमें मीन गिवन है, अननोन फ्रीक्वेंसी F फाइंड आउट करनी है। Next step is Fi into Xi। स्टूडेंट्स Fi वाली वैल्यू को Xi वाली वैल्यू से क्या कर लेंगे हम? मल्टीप्लाई। 12 7 जा 84 6 ठीक है 14 6 जा 84 16 9 जा 144 18 13 जा 234 20 को F से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 20 F 22 5 जा 110 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 96। अब हम सम कर लेंगे तो हमारे पास समेशन Fi क्या होगा स्टूडेंट्स? F वाली वैल्यू को हम अलग से ध्यान देंगे, कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करें। 4 प्लस 5 9 9 प्लस 13 22 31 37 44 और प्लस F। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे समेशन Fi Xi। समेशन Fi Xi में हम इन कांस्टेंट टर्म्स को पहले ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। जब ये कांस्टेंट टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो प्लस का जो हमारा ये 20f है ये अलग से हम लिख देंगे। तो कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर लें। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 प्लस 6 22 कैरी 2 9 प्लस 2 11 11 प्लस 11 22 22 प्लस 23 45 प्लस 14 59 67 75। इन सब का जब हमने सम किया स्टूडेंट्स तो समेशन Fi Xi की वैल्यू क्या आई? 752 प्लस 20f। अब हम इन वैल्यूज को स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले में पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा f कैलकुलेट हो जाएगा। तो बाय डायरेक्ट मेथड we know that mean equal to summation Fi Xi upon summation Fi. What is the value of mean? Mean is given, students, here mean is given 18 is equal to summation Fi Xi की वैल्यू आपके पास 752 प्लस 20f। What is the value of summation Fi? Summation Fi की वैल्यू 44 प्लस f। 18 के नीचे स्टूडेंट्स कुछ नहीं होगा तो क्या होगा ये 1। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई 752 प्लस 20f को 1 से करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? 752 प्लस 20f इज इक्वल टू 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 18 पहले 44 से होगा तो 18 इंटू 44 792 प्लस 18 को f से 18f। f वाली टर्म्स एक तरफ कर लिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट एक तरफ 20f प्लस का 18f इधर लिया है, किसका हो गया स्टूडेंट्स? माइनस का 792 प्लस का 752 इधर आके माइनस 20f माइनस 18f 2f इज इक्वल टू 792 माइनस 752 40। f इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, इधर आके डिवाइड करेगा, f क्या आ गया? 20। तो हेंस वैल्यू ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी f इज 20। Students, on the basis of this formula, or I can say on the basis of this formula, by direct method we calculate any question of this exercise from 1 to 9. If you want to solve question 1 to 9 by this method, if you want to do question number 4 5 6 7 for practice,
you have to do question 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, or I can say anyone from these by direct method. Now I starts one more question from this exercise. When we do one more question for this exercise, then you have to do your practice of direct method in your rough notebook. Now students, question number 7 by direct method. Students, concentration of SO2 and frequencies are given, that is class interval and frequencies are given. What are the class intervals? 0.002, 0.04, 0.042, 0.08, 0.082, 0.12, 0.12 से 0.16, 0.162, 0.20, 0.20 to 0.24. Frequencies are given 4, 9, 9, 2, 4, 2. What is the value of mid value xi? हम लोअर लिमिट 0.00 और अपर लिमिट 0.04 पर ऐड करके हाफ करेंगे स्टूडेंट्स, तो 0.02, 0.04 में 0.08 प्लस करेंगे तो 0.12, उसका हाफ होगा 0.06. इसी तरीके से ये 0.10, 0.14, 0.18, 0.22. नेक्स्ट टाइप हमारा हमें प्रोडक्ट चाहिए Fi इंटू xi. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम Fi इंटू xi? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 को, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.14, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.18, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.22. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? समेशन Fi एंड समेशन Fi xi. So what is the value of summation Fi? Means sum of all frequencies. 2 plus 4, 6 plus 2, 8 plus 9, 17 plus 4, 21 plus 9, 30. So sum of all frequencies is 30. What is the sum of Fi xi? 8 plus 4, 12 plus 8, 20 plus 2, 22 plus 4, 26. Carry 2. 4 plus 2, 6 plus 7, 13 plus 2, 15 plus 9, 24, 29. So what is the sum of Fi xi? 2.96. Hence now we use direct method. What is the formula to calculate the mean by direct method? Mean x bar is equal to summation Fi xi upon summation Fi. Now we put the values of summation Fi xi and summation Fi from this table. What is the value of summation Fi xi? 2.96. What is the value of summation Fi? 30. यदि स्टूडेंट्स हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो उससे पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे आपका क्या आएगा? 100. तो आपका आया 296 अपॉन 3000. हम 296 को 3 से पहले डिवाइड कर देते हैं और फिर किससे डिवाइड करना है? 000 साथ है, मींस दैट 1000 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 9 जा 27, 2 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18, 3 6 जा. देखिए हमें 1000 से डिवाइड करना है, इसलिए जो डेसिमल यहां था वो 3 प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा. तो ये आपका डिवाइड के बाद जो आंसर आएगा 0.09866. यदि स्टूडेंट्स
आप इसे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना चाहते हैं तो आपने 4th प्लेस देखा 5 या 5 से ज्यादा है तो आप इधर एक इंक्रीज कर देते हैं। तो व्हाट इज 0.099, तो व्हाट इज आंसर 0.99। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में था फाइंड द मीन concentration of SO2 in the air, hence mean concentration of SO2 in air is 0.099 parts per million. In the next video of this chapter, friends, we discuss about the mean by assumed mean method. Thanks.